Hello students, today I am going to start your new topic, that is continuity and derivatives. So first of all, question arises, what type of functions are known as continuous functions? If we see graphically, then a function is said to be continuous if you can draw it without any break, means without lifting your pen. If you can draw it, then it is said to be continuous. As you can see here, I have drawn this any function from here to here without lifting my pen. So this is continuous from here to here. Now graphically, so you can show it like this. This is the continuous function, but algebraically, if you have to show it, then how you can show it algebraically that this function is a continuous function? For that, try to understand it. Suppose there is a function and its left-hand limit at this point A. This is the point A. Okay. At this point, if we move a little bit to the left, then its limit is this. If we move to the little bit right, it's like this. To the right also, right side. To the left also, to the right also, means the left hand limit. This is the left hand limit. This is the left hand limit. And if we see, right hand limit is also same. Right hand limit is also same. This is the left hand limit. This is the right hand limit. Both are same. But, and you have already studied in your 11th standard that when left hand limit is equal to right hand limit, then we say, at any point, then we say the limit of the function at this particular point exists. So, if left hand limit at x is equal to a is equal to right hand limit at x is equal to a, both are same, then we say it implies that limit x tends to a, fx exists. Fx exists, and suppose this is equal to p. So this is equal to p. Means this point is p. Suppose this point is p. So left hand limit and right hand limit both are equal to p. It means limit exists. This you have already studied, as I told you, in your previous grade. But now we are going to little bit extend it, that when the value of this function, so this is function fx, y is equal to fx. Now the value of y means the value of fx at this point A is also p. This is also same. It means when limit x tends to a, fx is equal to value of the function at that point, at this particular point, then you can see the function has become continuous. Earlier, when we were knowing only about the value of the left hand limit and the value of the right hand limit, when both of these were equal, the function was not continuous. There is a cut, you can see. There is a break. There is a break. You can see we were going from here to here. Then we have to lift our pen. Then we have to go here to here to complete this graph. But now value of this function at this point A also becomes equal to this p, that is also p, then this function becomes continuous. So that's same I have written. This is same I have written here. When the limit of, what is the meaning of the limit? Means the left hand limit is equal to right hand limit. That is equal to the value of the function at that particular point where we have to check the continuity. So if all these are equal, then we say the function is continuous at this particular point A. And students, I hope the definition of the continuity of a function is clear to all of you. That a function f is said to be continuous at this point x is equal to a, when left hand limit at that point is equal to right hand limit at x is equal to a is equal to f of a, so that we can write, क्योंकि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट
x tends to a fx if both of these are equal is equal to f of a. ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन. हमें पता तो चल गया कि भाई ये लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ए के होगा तो कंटीन्यूअस है. लेकिन अब डिसकंटीन्यूअस कब होगा? ऑब्वियसली जब सबसे पहले तो लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए. अगर आपका लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करता और आपने यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 11th क्लास की लिमिट कब नहीं एग्जिस्ट करता? जब आपका लेफ्ट और राइट लिमिट सेम ना हो. लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट जो है आपका इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा. लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आपका कॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो कंटीन्यूअस नहीं होगा वो फंक्शन. लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करता. सपोज करो आपका ये फंक्शन है, ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये पॉइंट ए है, ए के लेफ्ट में ये वैल्यू है आपकी, ठीक है, और ए के राइट में ये फंक्शन यहाँ चला गया तो ए के राइट में आपकी ये वैल्यू है. तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो ये है और राइट हैंड लिमिट ये है आपकी. तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही नहीं सेम आ रही है तो आप कैसे कह सकते हो कि लिमिट एग्जिस्ट करती है? जब लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करती, ये दोनों सेम ही नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. अच्छा जी, अब आ जाइए आप कि अगर ये दोनों तो सेम है लेकिन एफ ए इक्वल नहीं है, वो कैसे भाई? दिस हाउ इट इज पॉसिबल? देखिए, अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट ये एट दिस पॉइंट ए, ये ए पॉइंट है, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट, ये दोनों तो सेम है. ये भी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये और यही आपका राइट हैंड लिमिट है, देख रहे हो ना. लेकिन आपका एफ ऑफ ए यहां पर है तो आपका ब्रेक तो वहीं का वहीं रह गया ना. दिस इज एफ ऑफ ए है, दिस इज एफ ऑफ ए, सॉरी एफ ऑफ ए मैं इसको नहीं लिख सकती, मैं ये पॉइंट यहाँ पर दिस इज एफ ऑफ ए है. ये पॉइंट तो आपका एक्स ए एंड वाई की वैल्यू एफ ए ऐसे लिखोगे तो एफ ऑफ ए यहाँ पर है. तो अब आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो सेम है लेकिन दैट इज नॉट इक्वल टू एफ ए. तो यू कांट से दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बिकॉज देयर कम्स अ ब्रेक इन दिस केस. नाउ नेक्स्ट केस, लेफ्ट और राइट लिमिट तो सेम है लेकिन एफ ए एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता. इन दैट केस ऑल्सो योर फंक्शन इज नॉट गोइंग टू बी continuous. Now for you what type of question will come? You will have to, the question may be in this form कि find the continuity of the function या check the continuity of the function at this particular point. At this particular point आ जाता है तो आपको कैसे चेक करना है? तो आपको ऐसे चेक करना है कि at this particular point means limit आपको चेक करना है, that limit at that point is equal to fa, means so that you need to check left hand limit at x is equal to a, right hand limit at x is equal to a is equal to f of a, you need to check. अब कई बार आ जाता है check the continuity of the function in the given interval. Interval may be this open or closed. In that case, how to do? You will take any arbitrary point, arbitrary number in between this a और b के बीच में. जैसे ये आपका सपोज करो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए और बी के बीच में कहीं भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट सी ले लेंगे अगर हम, ठीक है. तो अब यहाँ हम ले लेते हैं देन सी बिलोंग्स टू ए बी और सी बिलोंग्स टू जो भी इंटरवल है वो आप ले लीजिए. क्लोज में है तो क्लोज में से सी कोई भी पॉइंट ले लीजिए, क्लोज ओपन जहां भी है आपने इन बिटवीन यू आर टू टेक एनी पॉइंट, एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, एंड देन यू विल चेक our function is continuous at this arbitrary point. It means the function is continuous in that interval. So we need to check in that case limit x tends to c, f of x is equal to f of c. फंक्शन को उस पर्टिकुलर पॉइंट पर continuous, उस पर्टिकुलर पॉइंट जो भी आपने इस इंटरवल के बीच में आर्बिट्रेरी पॉइंट कोई भी लिया है उस आर्बिट्रेरी पॉइंट पर अगर आप उसको कंटिन्यूअस कर देते हैं तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द होल इंटरवल. अब फॉर ऑल रियल नंबर्स, आपका सभी रियल नंबर्स के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है. दैट हाउ यू कैन प्रूव? फिर उसी केस में आप इसमें भी आप ऐसे ही करेंगे बिल्कुल सेम. लेट एक्स सी, एनी सी इज अ नंबर व्हिच इज बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स. कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट आपने आर्बिट्रेरी नंबर फ्रॉम द रियल नंबर्स यू विल टेक एंड then you will show that limit x is tending to c, f of x
इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट at C is equal to right hand limit at point C is equal to FC. Then your function is continuous at this particular point C you have taken, but C is any point on the real numbers line, means the function is continuous for all the real numbers in this case. Anji, now let us discuss the algebra of the continuous functions. Suppose you have two functions which are continuous for all real numbers. F and G are two continuous functions for all real numbers. It means everywhere these are continuous. तो क्या होगा कि ये दो functions को add करते हो तो एक नया function आएगा, या दो functions को इनको subtract करते हो then also you will get a new function. तो जो add करके या subtract करके you will get the new function, that will also be continuous for all real, means for all real numbers. Is it clear? Now next, अगर दो continuous functions हैं for all real numbers, तो क्या होगा for all real numbers, या फिर क्या कह लीजिए कि any point, not we will not take for all real numbers, add x belongs to real numbers. तो add x, add this is C belongs to R. C belongs to R. I have taken any particular point. जरूरी नहीं for all real numbers. अगर एक आपका दो functions हैं वो किसी एक particular point पर continuous है, तो आपका उन दो functions का addition और subtraction भी उस particular point पर continuous होगा. उन दो functions का जो है product और उनका quotient भी continuous होगा उस particular point पर. ठीक है. अब एक चीज यहाँ पर क्वेश्चन वाले में ध्यान रखना कि यहाँ पर g is not equal to 0. ये जो gx है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए ये क्वेश्चन फंक्शन. ठीक है. अब f of g and g of f is also continuous at c belongs to r. अब ये क्या है, g of f, fog and gof, what are these? ये इसको समझिए ऐसे. देखिए यहाँ पर ये एक चीज और बता दूं, CTS आई एम राइटिंग द शॉर्ट फॉर्म फॉर कॉन्टिन्यूअस. कॉन्टिन्यूअस के लिए मैंने CTS शॉर्ट फॉर्म यूज किया. ठीक है. हाँ जी. तो अब ये कंपोजिट फंक्शन समझिए पहले, ये f of g and g of f. सपोज sin x square. तो sin function is applied on one more function that is equal to x square. If I take fx is equal to sin x and gx is equal to x square, तो f of g क्या हो जाएगा पहले तो देखो. तो आपने क्या करना है, f यहाँ से शुरू करते हैं इस साइड से, g की जगह क्या लिखेंगे x square. अब आप f में x की जगह x square लिख दीजिए. x की जगह क्या लिखिए x square, तो ये हो जाएगा sin x की जगह आ गया x square. तो दिस इज f of g, isn't it? अगर आपके पास होता sin square x, सपोज करो sin square x है, तो वन फंक्शन स्क्वायर फंक्शन इज अप्लाइड ऑन दिस. अब ये देखो फिर दोबारा से, अगर हम इसको g of f देखें, g of f, पहले f of g देखा था, g of f, तो इधर से शुरू करेंगे g ऑपरेटिंग ऑन fx. तो fx क्या था आपके पास sin x, तो g fx की जगह क्या आ जाएगा अब sin x. fx की जगह उसका फंक्शन पुट कर दिया. अब क्या है उसके बाद g फंक्शन में, अब x की जगह आप, इस x की जगह आप क्या लिखेंगे sin x, और फंक्शन वही रहेगा स्क्वायर ऑफ दिस x. तो आप आपके पास x की जगह sin x है, तो आप लिखेंगे sin x का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है. तो अगर g of f है तो sin स्क्वायर x है, अगर f of g है तो sin x स्क्वायर है. अगर मैं ये कहूँ कि fx और gx दोनों कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस हैं, ऑब्वियसली है तो सही, मैं आपको आगे बताऊंगी क्यों है वैसे भी. तो ये अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस है तो इनका जो कंपोजिट फंक्शन होगा, चाहे वो f of g होगा, कंपोजिट फंक्शन मींस वन फंक्शन सप्लाइड ऑन द अदर फंक्शन, और g of f ये आया है आपके पास sin स्क्वायर x, ये भी कॉन्टिन्यूअस होंगे. ठीक है. तो आप इसके बाद आप आ जाइए यहाँ डायरेक्टली कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस. कुछ को हम डायरेक्टली यूज करेंगे, फर्दर वी विल व्हेन वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस
in 6th chapter also, in an application of the derivatives also. Then we will use in this chapter also, in particular this exercise also, in the continuity में भी हम directly continuous functions कौन से, ये हमें पता होना चाहिए. Polynomial functions are continuous functions for all real numbers. If you have any polynomial function of any order means 2, 3, 4, any finite order you have of a polynomial function, then that polynomial function is a continuous function for all real numbers. जैसे आपने ड्रॉ किया था फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, आपको पता है कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये है, तो ये कॉन्टिन्यूअस है, कीप ऑन मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ये चलता जाएगा आपका, ठीक है, कहीं ब्रेक नहीं है इसका. ऐसे fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब का आपने ग्राफ ड्रॉ किया था, अगर आपको याद हो तो ये देखिए fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, क्या था ये ऐसे और ये ऐसे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, चलता रहेगा, ये कहीं रुकेगा नहीं, ठीक है. तो ये तो मैंने 2 और 3 ऑर्डर के सिंपल वाले, बिल्कुल सिंपल मोस्ट जो फंक्शंस थे उनके बारे में बताया. अदरवाइज ऑल्सो इफ यू हैव पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ एनी फाइनाइट डिग्री देन दिस इज कंसिडर्ड एज कॉन्टिन्यूअस. नेक्स्ट इज साइन एक्स, कॉस एक्स एंड मॉड फंक्शन. मॉड फंक्शन, इसको आप मॉड फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन. साइन एक्स, यू नो द ग्राफ ऑफ द साइन एक्स, कॉन्टिन्यूअस 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 कॉन्टिन्यूअस. ये देखिए x की वैल्यू फॉर ऑल रियल नंबर्स, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कॉन्टिन्यूटी है फंक्शन की, ग्राफ में कॉन्टिन्यूटी है, कहीं ब्रेक नहीं होती है, तो ये कॉन्टिन्यूअस है. ऐसे cos x का ग्राफ क्या होता है, cos x का ग्राफ यहाँ से चालू होता है 1 से, तो ये ऐसे है, ऐसे ऐसे बिल्कुल जिगजैग जिगजैग जिगजैग, ये चलता रहेगा, ये भी कॉन्टिन्यूअस है आपका, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा. तो sin x, cos x, mod x, mod x का ग्राफ आपका इस पर्टिकुलर के लिए जो मैंने यहाँ पर लिखा है, तो ये ऐसे, इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस. आपको पेन तो नहीं उठाना पड़ा, विदाउट एनी ब्रेक यू आर डूइंग इट, सो इट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस. तो इनको तो आप बिल्कुल याद रखिए कि sin x, cos x एंड मॉडुलस फंक्शंस आर कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स. लेकिन बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए ऐसा नहीं होता, वो वहां पर कंटिन्यूअस नहीं होंगे. कहां पर, जहां पर वो अनडिफाइंड हो जाते हैं, जहां पर वो डिफाइंड नहीं है, तो हम बोलते हैं कि दे आर कॉन्टिन्यूअस, दे आर ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, बट दे आर कॉन्टिन्यूअस इन देयर पर्टिकुलर डोमेन्स, इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स ओनली. लाइक जैसे मैं आपको 10x का ग्राफ बना के बताती हूँ, दिस इज y इज इक्वल टू 10x, इसका ग्राफ मैं आपको बताती हूँ, आपको समझ आ जाएगा. ये है, फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे, ठीक है, 0 पर, फिर पाई पर, फिर 2 पाई पर, ऐसे. अब आपको यहाँ से यहाँ तक तो कॉन्टिन्यूअस जा रहा है, ठीक है, ये π/2 है और ये -π/2 है. तो आप देख रहे हो कि ना तो -π/2 पर ये डिफाइंड है, इट गोज माइनस इन्फिनिटी, ना ये π/2 पर डिफाइंड है, इट गोज अप टू इन्फिनिटी. तो -π/2 से π/2 के बीच में लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस है यहाँ से यहाँ तक. तो जो अगर हम 10x को लें तो -π/2, मैं ओपन इंटरवल लिख रही हूँ, ध्यान दीजिए मैंने क्लोज नहीं लिया, क्योंकि ना तो ये -π/2 पर डिफाइंड है ना π/2 पर. अगर ऐसे लिखूंगी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इस पर भी फिर मैं बोल रही हूँ कि दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड एंड दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड, लेकिन ना तो इस पर ये डिफाइंड है ना इस पर डिफाइंड है, तो हमने इसलिए एक्सक्लूड कर दिया, ओपन इंटरवल लिया हमने, ये वाला नहीं लिया. तो इतने इंटरवल में ये कॉन्टिन्यूअस है. फिर दोबारा यहाँ से लो, ओपन इंटरवल π/2 से लेकर 3π/2 तक, ये फिर कॉन्टिन्यूअस है, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है. क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पर और यहाँ पर अनडिफाइंड है, इसलिए ये यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है. तो हम बोलेंगे कि इसका जो डोमेन है ये है, इसका ये है, यानी कि इसका डोमेन क्या होता है, tan x का डोमेन क्या है, टेंजेंट फंक्शन का डोमेन है ऑल रियल नंबर्स माइनस कौन से, π/2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं, π/2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं, यानी कि 2n + 1 π/2. ओके, दिस इसमें से ऑल रियल नंबर्स में से π/2 वाली वैल्यूज को अगर माइनस कर दोगे फिर ये कॉन्टिन्यूअस है. तो वही तो मैंने लिखा है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू फॉर वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज योर tan x. नाउ
log x, it is also same for the log x. log का जो ग्राफ है वो 0 to infinity ये इस तरीके से ऐसे जाता है, तो log x is continuous in its domain, और इसका डोमेन होता है 0 to infinity. 0 to infinity means all positive values of x के लिए, 0 is not included, so it is also continuous in its domain. And the students, I have taken 6th question of exercise 5.1. In this question you are to find the points of discontinuity of this function. यानी कि आपको कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया where you have to check the continuity of the function. In this question you are to check where this function is not continuous on, means any point, is there any point on the number line, is there any point on the real number, from the real number, where this function is not continuous, you are to find out that. यानी कि आपको सभी रियल नंबर्स के लिए चेक करना पड़ेगा कि ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है. तो उसके लिए क्या करते हैं हम, इसको अगर मैं विजुलाइज करूं तो 2 पर ये फंक्शन क्या है, x इज इक्वल टू 2 पर 2x प्लस 3 है, x लेस देन 2 पर भी यही है 2x प्लस 3, और राइट साइड में x इज ग्रेटर देन 2, यानी इधर की साइड राइट साइड में दिस फंक्शन इज 2x माइनस 3. तो आई कैन सी हियर फॉर ऑल द वैल्यूज विच आर लेस देन 2, यानी कि यहां से अगर x की वैल्यूज लो इस इंटरवल को, अब आपके कितने इंटरवल होंगे, एक इंटरवल ये है, दूसरा इंटरवल ये है, 2 इंटरवल्स हो गए. इन 2 इंटरवल्स में हम कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं अलग अलग, और इस पॉइंट 2 पर चेक कर लेते हैं, यानी कि इस इंटरवल में कंटिन्यूटी अलग चेक कर लेंगे और इस इंटरवल में अलग कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि इस पूरे इंटरवल में फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 2 यू कैन सी वी हैव ओनली वन पर्टिकुलर फंक्शन, एंड दैट इज अ लीनियर फंक्शन, दैट इज a polynomial function with degree 1, and as I told you earlier all the polynomial functions are continuous functions, automatically they are continuous. Now here in this interval from 2 to infinity we have again a polynomial function, one polynomial function that is also continuous, but when we come at this point 2 then the function behaves in different manner about this point, means in the left side this is like this, in the right side it is like this, so we can't say that the function may be continuous, it may be, we can't predict the continuity at this point without actually calculating it, without finding the left hand limit and right hand limit. तो हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट में दोनों साइड अलग अलग तरीके से फंक्शन डिफाइंड है. ठीक है, तो हम पहले लेते हैं इस इंटरवल के लिए ये इंटरवल. तो फर्स्ट केस 1, इसमें क्या है, योर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2, ओपन ब्रैकेट ले रही हूं मैं, आप देख लीजिए, ओपन इंटरवल है. ओपन इंटरवल में f(x) क्या है, 2x प्लस 3 विच इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन. Therefore, f(x) is continuous for all x belongs to minus infinity to 2, क्योंकि हमें पता है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो वो सभी रियल नंबर्स के लिए कॉन्टिन्यूस होता है. सभी रियल नंबर्स के लिए कॉन्टिन्यूस है तो इतने रियल नंबर्स के लिए कॉन्टिन्यूस होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा. सो दिस इज नंबर 1. अब केस 2 से क्या आ गया, जब आप दूसरा इंटरवल लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, टेक इट ओपन ब्रैकेट. अब इस केस में फंक्शन क्या है आपके पास, दैट इज 2x minus 3 which is again a polynomial function. It is also a polynomial function, isn't it? Therefore f(x) is continuous for all x belongs to 2 to plus infinity. यहाँ पर भी ये continuous है. तो अब continuity कहाँ चेक करने के लिए रह गई, वो रह गई 2 पर, at x is equal to 2. अब हम चेक करेंगे केस 3, that is your at x is equal to 2. इस पॉइंट 2 पर continuity चेक करेंगे. तो सबसे पहले तो f2 कैलकुलेट कर लो. f2
2 पर फंक्शन कैसे डिफाइन है, ये देखो इक्वल टू 2 तो मैंने ये लिखा है 2x प्लस 3 यानी 2 इंटू 2 प्लस 3 दैट इज 7. नाउ कम टू लेफ्ट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 2 के लेफ्ट में आपका फंक्शन क्या है, वहां पर लिमिट पुट करनी है. अब आप ये देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहे हैं. डायरेक्ट यहाँ पर लेफ्ट में क्या है, डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो. ठीक है, तो हम इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट में डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर ऐसे कीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0. फंक्शन के लेफ्ट में क्या फंक्शन है, ये 2x की जगह क्या रखेंगे 2 माइनस h प्लस 3. आप उसके बाद h की वैल्यू 0 पुट करो तो 7 आएगा. लेकिन हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ये थोड़ा लंबा स्टेप पड़ेगा. अगर हम इसको डायरेक्टली करना चाहें तो हमें ये करने की जरूरत नहीं है. आप लेफ्ट हैंड लिमिट लिखिए और ये फंक्शन लिखिए, और क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट में ये फंक्शन है, इसके अपॉन में 1 है. आपने 11th में पढ़ा था इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो आपको कैंसिल करना है, फैक्टराइजेशन करना है या कुछ करना है. लेकिन ये तो डिटरमिनेट फॉर्म आएगी क्योंकि नीचे आपके पास 1 है. आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हो, तो डायरेक्ट ये लिमिट 2 पुट कर दीजिए इसमें. तो क्या आएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 7. आप राइट हैंड लिमिट पर आ जाइए. राइट हैंड लिमिट में भी या तो तरीका वो h वाला है कि 2 प्लस आप करके करिए, या आप डायरेक्ट जो राइट में है उसमें डायरेक्ट भी आप लिमिट पुट कर सकते हैं. तो क्या है आपके पास राइट में, तो क्योंकि इसके अपॉन भी 1 है, अपॉन में 1 है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनने वाली, डायरेक्ट यू कैन पुट द लिमिट. तो दिस इज इक्वल टू 2, या फिर इसको एक बार लिख लीजिए लिमिट x टेंड्स टू 2, दिस इज 2x माइनस 3. तो ये आप x की जगह 2 डायरेक्ट पुट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ 1 है. तो दिस इज 2 इंटू 2 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1. सो यू कैन सी लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. When left hand limit is not equal to right hand limit, तो मैंने आपको बताया फर्स्ट यही पॉइंट था, डिसकंटिन्यूअस कब होता है, जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर सेम नहीं आते हैं तो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस. देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2. अब ये पॉइंट थर्ड आ गया. तो हमने देखा 2 से पहले सारा कॉन्टिन्यूअस था, 2 के बाद सारा कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन 2 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है. यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सभी रियल नंबर्स के लिए कॉन्टिन्यूअस है एक्सेप्ट एट दिस पॉइंट 2. और हमें यही डिसकंटिन्यूटी निकालने के लिए इसकी बोला गया था. तो हम लास्ट में लिखेंगे बाय 1, 2 and 3 we can say fx is continuous for all real numbers. This means for all. This is the symbol of for all real numbers except at x is equal to 2. Okay, therefore point of discontinuity क्या हुई आपकी, क्या है, is x is equal to 2. So students, today I have explained you the continuity and algebra of continuous functions and what are the direct continuous functions. And one question also I have solved. You now try more questions in my next video. We'll try more questions for to check the continuity of a function for a particular point, or to check the discontinuity, to check the points where the functions are not discontinuous, where the functions are discontinuous.